today we are starting with a new chapter which is liquidation of company. In our previous years we have done dissolution of partnership firm, where the partnership firm gets over and all the assets are realized and your liabilities are paid off, and whatever remains you give it to the partners. Similarly over here we are going to do the liquidation. Now what do you mean by liquidation? In short, you are closing down the company and your company's legal existence comes to an end. So basically कैसे होता है समझ लो. For example, company has assets, like company will have fixed assets, investments, then current assets, there will be various stock, debtors, many current assets, cash and bank, everything. So company will have some assets and company will also have liabilities. So basically we can divide liabilities into two parts. One is shareholders, or you can say as share capital. So the person or the members who have contributed share capital in the company, and other I would say outsiders liability. Outsiders liability would be like creditors, bank OD, some loans, debentures, etc. So these are the assets and liabilities. Now company want to liquidate itself, liquidate company को बंद करना है. So basically हम लोग क्या करेंगे कि ये सारे जो assets है that we will convert into cash, इनको सेल करके या रियलाइज करके विल कन्वर्ट दिस इनटू कैश, बिकॉज वंस यू क्लोज डाउन द कंपनी योर प्रॉपर्टी शुड बी सोल्ड ऑफ. वो सेल करोगे तो आपको आपके क्रेडिटर्स को पैसा देना पड़ेगा. सिंपल सी बात है, अगर मैं कंपनी बंद कर रही हूँ, अगर मेरे कोई कंपनी है तो आई विल हैव टू मेक द पेमेंट टू ऑल माई क्रेडिटर्स एंड ऑल द आउटसाइडर्स लाइबिलिटी, एंड इफ some amount remains then that is to be given to the shareholders. So basically what is done, all the assets are converted into cash, they are realized into cash, and then the payment is made to the liabilities. जितना भी कैश आया फिर आप किसको पेमेंट कर दोगे, लाइबिलिटीज के लिए पे कर दोगे. तो बोलो लाइबिलिटीज में पहले किसको पे करोगे, शेयर होल्डर्स और आउटसाइडर्स? यस, डेफिनेटली आउटसाइडर्स फर्स्ट, बिकॉज जो भी पैसा है पहले आप बाहर वालों का सेटलमेंट करोगे. सो क्रेडिटर्स विल नॉट अलाउ यू टू पे ऑफ टू योर शेयर होल्डर्स until and unless their dues are paid off. Okay, so first it is always paid to the outsiders, and if any balance remains, so then that is given to the shareholder, that is your preference shareholders and then equity shareholders. Here also preference shareholders are paid off first because the name is preference, so they always get the preference over the equity shareholders. So that while winding up of the company, you are going to pay first to the preference shareholders then to the equity shareholders. So basically ये सारी चीज़ें हम लोग को ये क्वेश्चन में करनी है या ये चैप्टर में करनी है. असेट सेल होगा, असेट्स में से पैसा मिलेगा और वो पैसे से आप आपका लायबिलिटी सेटल करोगे. इफ देयर इज एनी सरप्लस देन इट इज टू बी गिवन टू द शेयर होल्डर्स. इफ देयर इज एक्स्ट्रा सरप्लस तो वो एक्स्ट्रा सरप्लस लास्ट में आपके शेयर होल्डर्स को चला जाएगा. इफ देयर इज एनी डेफिसिट then deficit will be definitely to be borne by the shareholders. तो ये हो गया आपका बेसिक कि आपको करना क्या है. Now this chapter is without any journal entries और ledger account, journal वगैरह कुछ नहीं है. It is basically mainly a format chapter. So यहाँ पे आपको थोड़ा सा format अच्छे से याद रखना पड़ेगा. Quite simple and scoring because एक format है. You remember that format, you fill up the amounts and this question is done. So basically बहुत simple question ये chapter हो गया आपका. Now we'll understand the terms. जनरली कैसे होता है कि हम लोग वाइंडिंग अप बोलो या डिसोल्यूशन बोलो या लिक्विडेशन बोलो, हम लोग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं. कभी बोलते थे कि ये डिसोल्यूशन हो गया कंपनी का, कभी बोलते थे कि ये कंपनी का वाइंड अप हो गया या कंपनी का लिक्विडेशन हो गया. सो देयर इज अ माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन दिस थ्री टर्म्स. नाउ व्हेन यू आर डूइंग द चैप्टर, बहुत बार ऐसे होगा कि दे यूज द वर्ड एज लिक्विडेट हो रहा है या वाइंड अप हो रहा है. द सम्स फॉर्मेट आर ऑल द सेम, बट सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए, आपके नॉलेज के लिए, और आई वुड से एज ऑब्जेक्टिव्स, यू मस्ट नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस थ्री टर्म्स. फर्स्ट, वाइंडिंग अप. वाइंडिंग अप का मतलब क्या होता है कि इट स्टार्ट्स, इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ योर लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी. इट इज द फर्स्ट स्टेप जहाँ पे आप आपकी कंपनी के अफेयर्स क्लोज करोगे. यू सेल ऑफ ऑल योर असेट्स, यू विल रियलाइज कैश, यू विल पे ऑफ टू योर लायबिलिटीज, and if any surplus remains it will be given to the shareholders. So winding up, it is the process of ending the business affairs. The assets of the entities are realized, the liabilities are paid off, and the surplus if any is distributed to contributors. That is the meaning of winding up.
देन कम्स टू डिसोल्यूशन. नाउ वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन में सिर्फ इतना फर्क है, वाइंडिंग अप इज द फर्स्ट स्टेज, डिसोल्यूशन इज द कंप्लीटिंग स्टेज. सो इट इज द फाइनल स्टेज ऑफ वाइंडिंग अप. सो जहाँ पे आपका वाइंडिंग अप खत्म होता है वहाँ से आपका डिसोल्यूशन चालू होता है. तो डिसोल्यूशन कैसे होगा? डिसोल्यूशन का मतलब इट इज द फाइनल स्टेज आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वाइंडिंग अप प्रोसेस एंड लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी कम्स टू एन एंड. यहाँ पे जब भी आपका डिसोल्यूशन ऑर्डर आ जाता है मतलब कंपनी का लीगल एग्जिस्टेंस कंप्लीट हो जाता है. कंपनी जब भी आप स्टार्ट करते हो, यू रजिस्टर द कंपनीज एक्ट. नाउ वंस इट इज डिसॉल्व्ड, द नेम इज removed from the registrar of the companies, the name is deleted from there and your legal existence of the company gets over. And liquidation, liquidation का simple, अभी winding up and liquidation में difference क्या है? Winding up क्या था? It is process of ending the business affairs, but liquidation का basic meaning ये होता है कि it refers to selling off of the assets. यहाँ पे जब ये liquidation बोला तो हम लोग सिर्फ इतना नहीं करने वाले कि सिर्फ कंपनी के assets सेल ऑफ कर दो, हम लोग उससे लाइबिलिटीज भी पे ऑफ करने वाले हैं. बट दिस इज द माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स, दो दीज टर्म्स आर यूज इंटरचेंजेबली. सो ये हो गया आपका बेसिक, व्हाट इज वाइंडिंग अप, व्हाट इज डिसोल्यूशन. सो बेसिकली करना क्या है? बेसिकली कंपनी बंद करनी है, असेट्स बेचने हैं एंड लाइबिलिटीज पे ऑफ करके योर कंपनी का एग्जिस्टेंस कंप्लीट करना है. नाउ इसके बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज होते हैं बट दैट इज टू बी लर्नड इन योर लॉ. यहाँ पे हम लोग बेसिकली अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव देखेंगे कि अकाउंट्स में या अकाउंटिंग तरीके से ये कैसे होगा. सो कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप. नाउ देयर आर टू मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप. एक होता है कंपल्सरी और एक होता है वॉलंटरी. वॉलंटरी मतलब कंपनी खुद पिटीशन फाइल करता है कोर्ट में टू वाइंड अप इट्स बिजनेस अफेयर्स. अभी ऐसा नहीं होता कि कंपनी को मन हुआ फाइल कर दिया और नेक्स्ट डे कंपनी क्लोज हो गई. इट टेक्स टाइम लगता है वो कंप्लीट करने के लिए. तो फर्स्ट इज जो वॉलंटरी वाइंड अप जहाँ पे कंपनी इटसेल्फ फाइंड्स द पिटीशन इन द टू द कोर्ट. सेकेंड इज कंपल्सरी वाइंड अप. जनरली कंपल्सरी वाइंड अप कभी होता है व्हेन द कंपनी इज अनेबल टू पे ऑफ इट्स डेट्स, व्हेन द कंपनी हैज डन सम फ्रॉड और इट हैज वर्कड इन अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट. कुछ ऐसा जो अपने इंडिया के लिए या अपने कंपनी के लिए या अपने नेशन के लिए अगेंस्ट में जा रहा है या कुछ फ्रॉड हो रहा है. या ऐसा भी होता है कि इफ़ द कंपनी डज नॉट फाइल इट्स एनुअल रिटर्न एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर कंसेक्यूटिव 5 years देन द इट कैन बी ऑर्डर टू वाइंड अप. तो वहाँ पे कैसे हो जाता है कि इट इज कॉल्ड एज कंपल्सरी वाइंड अप. Now all this winding up is basically governed by the law, that is Companies Act के हिसाब से हम लोग करते हैं wind up. In Companies Act, that is by Companies Act we follow this, मतलब this winding up is done by National Company Law Tribunal. मतलब कोर्ट से ये किया जाता है wind up, that is National Company Law Tribunal. So कोर्ट से आपका ये ऑर्डर आता है और वहाँ से wind up किया जाता है. बट कैसे हो जाता है बहुत बार कि since court has so many burdens of the cases and everything, so now with effect from 1st April there is a insolvency. एक अलग पैनल बना दिया है या एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया है जहाँ विच इज कॉल्ड एज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड. सो ये एक अलग ऑर्गेनाइजेशन हो गया या एक अलग पैनल हो गया वो डील्स विद ऑल द वाइंडिंग अप. सो नाउ फ्रॉम द कंपनीज एक्ट और आई वुड से फ्रॉम कोर्ट इट इज वेंट द प्रोसीजर इज टू बी हैंडल्ड बाय IBC. ओके, बट उसमें भी कैसे है कि IBC ने सारे मैटर्स टेक ओवर नहीं किए. यहाँ पे कुछ डिफरेंस है. देखो वॉलेंट्री एंड कंपल्सरी. इन केस ऑफ वॉलेंट्री वाइंड अप up to 31st March 17 it is to be governed by Companies Act 13, but from 1st April 2017 it is to be governed by Insolvency and Bankruptcy Code. In case of compulsory wind up, if the company is unable to pay its debt, if the case is of bankruptcy जहाँ पे कंपनी अपने डेट्स पे नहीं कर सकती, then it would be governed by IBC. But if it is on any other grounds like fraud or annual return filing or anything, then it is to be governed by Companies Act. So overall we can say with effect from 1st April 2017 voluntary wind up and inability to pay debts, that is bankruptcy case है अगर wind up का या liquidation का, it would be dealt with IBC. But if it is on any other ground, compulsory में any other ground, then it would be dealt by the Companies Act. Now in our syllabus
IBC का अब तक कुछ मेंशन नहीं है, इट इज़ नॉट कवर्ड, सो वी आर गोइंग टू गो विथ कंपनीज एक्ट ओनली। अपने सिलेबस में ये सिर्फ कंपनीज एक्ट का कवरेज है, ये वाला नहीं है। सो हम लोग को सिर्फ कंपनीज एक्ट के हिसाब से ही करना है कि कैसे आपका स्टेटमेंट बनेगा, कैसे कैलकुलेशंस होगा, कौन सा अकाउंट बनेगा, वो सब हम लोग को एज पर कंपनीज एक्ट ही करना है। दैट इज कवर्ड इन अवर सिलेबस। ओके, सो ये हो गया आपका मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप। गाइज दिस मेनी थिंग्स प्लीज यू मेक अ नोट सो दैट इन केस कहाँ पे आपको रेफरेंस देना है फॉर योर नॉलेज, ऑल्सो फॉर ऑब्जेक्टिव समवेयर, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा डेट था, कौन आ गया, पहले क्या था। यू मस्ट नो दिस डिफरेंसेस एंड एवरीथिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट, ये वाइंड अप कैसे होता है उसका बेसिक स्टेप्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है। गाइज दिस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू कंप्लीट और वाइंड अप अ कंपनी। तो स्टार्टिंग विद द स्टेप्स, ये वाइंड अप होगा कैसे, कहाँ कैसे चालू होगा, या क्या क्या प्रोसीजर लगेगा, वो डिटेल आप लॉ में पढ़ सकते हो, बट यहाँ पे सिर्फ एक सिनॉप्सिस डाल दिया कि आप कैसे करोगे। सबसे पहले क्या होता है कि कोर्ट रिसीव्स द पिटिशन। अभी जैसे मैंने बोला कि हम लोग सिर्फ कोर्ट वाला करने वाले कंपनीज हैं। सो सबसे पहले क्या होगा कि कोर्ट रिसीव्स अ पिटिशन फ्रॉम द कंपनी और मे बी एनी अदर अथॉरिटी अपॉइंटेड फॉर दैट, और मे बी फ्रॉम द क्रेडिटर्स। अगर कंपनी ड्यूज पे नहीं कर रही है तो उनको क्रेडिटर्स से भी पिटिशन आ सकता है। सो फर्स्ट कोर्ट रिसीव्स द पिटिशन, देन फॉर दिस मैटर इफ कोर्ट एक्सेप्ट्स दैट पिटिशन तो देन कोर्ट अपॉइंट अ लिक्विडेटर। अभी ये लिक्विडेटर क्या होता है, समझ लो ऐसा कुछ हो गया है कि कंपनी ने फ्रॉड किया हुआ है, कंपनी ने के डायरेक्टर्स ने ही फ्रॉड कर दिया है, तो क्या आप डायरेक्टर्स को ही बोल सकते हो, कोर्ट का डायरेक्टर्स को ही बोलेगी ओके यू हैव डन फ्रॉड, यू वाइंड अप द कंपनी? नो, इट इज नॉट, क्योंकि वो लोग ही तो इन्वॉल्व थे फ्रॉड करने में। सो कैसे हो जाता है कि कंपनी कोर्ट जनरली अपॉइंट्स अ थर्ड पार्टी एज अ लिक्विडेटर फॉर द कंपनी, लिक्विडेटर फॉर दिस वाइंडिंग अप। अभी लिक्विडेटर क्या होता है, he takes all the property in his hand, he takes all the charge of the company, and ये जो पूरा प्रोसीजर होता है वाइंड अप का वो लिक्विडेटर अकेला हैंडल करता है। सो यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन होता है जो लिक्विडेटर अपॉइंट हो जाता है, तो कोर्ट अपॉइंट्स अ लिक्विडेटर। ओके, कोर्ट जनरली विल नॉट टेल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू बी अ लिक्विडेटर, या क्रेडिटर को बोल देंगे कि भाई आप ही लिक्विडेटर बन जाओ, वरना दैट वुड बी लाइक दे वुड बी पार्शियल। अगर क्रेडिटर्स है तो दे वुड बी पार्शियल फॉर देयर ड्यूज। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद ही इन्वॉल्व थे फ्रॉड में तो देन लिक्विडेशन पे बहुत सारा घोटाला होने के चांसेस है। सो जनरली थर्ड पर्सन इज अपॉइंटेड एज अ लिक्विडेटर। अभी अगर मैंने लिक्विडेटर को अपॉइंट कर दिया, क्या लिक्विडेटर को बैठे बैठे समझ में आ जाता है क्योंकि ये कंपनी के पास इतने असेट्स और इतने लायबिलिटीज है, यहाँ पे मैं समझ लो कि इफ आई एम अपॉइंटेड एज अ लिक्विडेटर ऑफ सम कंपनी, तो क्या मुझे पता चल जाएगा कि उसके इतने बैंक अकाउंट्स है, उसके पास यहाँ पे इतना गोल्ड पड़ा है, या इतना प्रॉपर्टी पड़ी है, इतनी फैक्ट्रीज है, या कंपनी के इतने ड्यूज है? नो, बिकॉज अगर आप बैलेंस शीट भी देखने चाहते हो तो लास्ट ईयर का बैलेंस शीट होता है, वो एक रेफरेंस है, बट करंट डेट में जब ये वाइंड अप होने जा रहा है तभी कंपनी का पोजीशन क्या है। सो लिक्विडेटर इज अ थर्ड पर्सन, तो उसको कैसे पता चलेगा कि कंपनी के पास क्या असेट्स और क्या लायबिलिटीज है? सो फॉर हिज नॉलेज कोर्ट ऑर्डर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। उसका एक प्रॉपर स्टेटमेंट बनाया जाता है विच वी आर गोइंग टू प्रिपेयर ऑल्सो। वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में कैसा होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विल गिव ऑल द डिटेल्स ऑफ देयर असेट्स and the liabilities to be paid off, and board of director will show whether as per their opinion whether there is a surplus or deficit. Now जो भी assets के वैल्यू डालेंगे that would be estimated value, market value के हिसाब से डालेंगे, वो हम लोग आगे करेंगे, but basically क्या होगा statement of affairs में on that particular date or on that particular situation कंपनी का assets कितना and कंपनी की liabilities कितनी, that is to be prepared by board of directors, एंड वो स्टेटमेंट बना के वो लिक्विडेटर को दे देंगे कि ओके दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ आवर बिजनेस एंड नाउ यू कैन स्टार्ट विद द लिक्विडेशन प्रोसेस। सो कैसे हो जाएगा, सिंस कोर्ट अपॉइंट्स अ लिक्विडेटर विच इज द थर्ड पर्सन टू द कंपनी, सो फॉर हिज नॉलेज, फॉर हिज रेफरेंस, वॉट एवर असेट्स और लायबिलिटीज विच आर बिलोंगिंग टू द कंपनी, वो सारी चीज़ों का एक स्टेटमेंट बन जाएगा विच इज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। सो दैट इज योर थर्ड स्टेप। ऑन ऑर्डर ऑफ कोर्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड सबमिट्स टू लिक्विडेटर। अभी लिक्विडेटर क्या करेगा, ओके मेरे पास लिस्ट तो आ गई कि कंपनी के पास ये एसेट्स है, उसका एस्टिमेटेड इतना वैल्यू है, कंपनी हैज दिस मच लायबिलिटीज एंड इतना इतना पे कर रहा है। देन द लिक्विडेटर विल
the it will take the hold of all the properties of the company. लिक्विडेटर जैसे बोलो ना कि कंपनी पूरा अपने हाथ में ले लेगा, जितना भी अभी जो भी करना है आगे कंपनी का, सेल ऑफ असेट्स, पेइंग ऑफ द लायबिलिटीज, दैट ऑल एवरीथिंग विल बी डन बाय द लिक्विडेटर. सो लिक्विडेटर क्या करेगा, लिक्विडेटर विल टेक द कस्टडी ऑफ ऑल द प्रॉपर्टीज, जितनी भी प्रॉपर्टीज है, जितने भी कंपनी के असेट्स है, वो सबकी कस्टडी किसके हाथ में आ जाएगी, लिक्विडेटर की. नाउ लिक्विडेटर विल स्टार्ट विद द प्रोसेस. लिक्विडेटर विल पे ऑफ द लायबिलिटीज बाय रियलाइजिंग द असेट. पहले वो असेट्स बेचेगा, उसमें से पैसे मिलते जाएंगे, वैसे वैसे वो लायबिलिटीज पे ऑफ करते जाएगा. लास्ट में अगर सारे असेट्स बेच दिए, उसके बाद व्हेन ऑल योर लायबिलिटीज आर पेड ऑफ, इफ देयर इज एनी सरप्लस इट वुड बी पेड टू द शेयर कैपिटल, सॉरी शेयर होल्डर्स. कभी कभी कैसे हो जाता है कि योर शेयर्स आर पार्टली पेड. फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज़ का शेयर है, इट इज़ पेड ओनली अप टू ₹80, तो 20 रुपीज़ इज अनकॉल्ड. सो इसमें कैसे हो जाता है, या अनपेड बोल सकते हो. तो इसमें कैसे हो जाएगा कि अगर आपके पास डेफिशिएंसी है, you don't have a sufficient amount to pay to your creditors, then that partly paid shares can be called up, उनका पैसा मंगवा सकते हो, and from that money you can pay off to your creditors. So यहाँ पे भी लिक्विडेटर को अगर कंपनी को ज़रूरत है और कंपनी के शेयर्स पार्टली पेड है, तो उनके पास से भी पैसा मंगवा के, मतलब कॉल करोगे, कॉल से पैसा आएगा, and from that money you can pay off to your creditors. सो वो सारी चीज़ें लिक्विडेटर करता है. गाइस ये लिक्विडेशन होने के लिए बहुत टाइम लगता है. समटाइम्स इट टेक्स 3 years, 4 years, 5 years. ऐसा नहीं है कि आज सोचा, आज पिटिशन फाइल हुआ, 2 दिन में लिक्विडेशन हो गया, 4th डे पे अपना कंपनी खत्म. इट इज़ नॉट पॉसिबल. बिकॉज अगर आप सोचोगे लिक्विडेशन से सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसको होगा, अगर मैं लिक्विडेट कर रही हूँ कंपनी को. सो इफ कंपनी डज नॉट हैव कैश, सफिशिएंट कैश, तो क्रेडिटर्स, आउटसाइडर्स को अफेक्ट होगा. बट एट द सेम टाइम लिक्विडेशन से अफेक्ट होगा आपके एम्प्लॉयज़ को. अगर कंपनी बंद होती है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ का तो एम्प्लॉयज़ के पास तो कोई सिक्योरिटी नहीं है ना, तो कंपनी बंद हो गई अगर, तो एम्प्लॉयज़ तो मतलब जॉबलेस हो जाएंगे, दे वोंट हैव जॉब. सो सबसे ज़्यादा इफेक्ट उनके वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ को भी होता है. तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रख के कोर्ट ये लिक्विडेशन का ऑर्डर देता है. तो ऐसा नहीं है कि पिटीशन फाइल हुआ एंड कोर्ट विल ऑर्डर फॉर द लिक्विडेशन. वो बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं. इफ कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द लिक्विडेशन इज द फाइनल ऑप्शन और कुछ नहीं हो सकता, देन कोर्ट विल ऑर्डर फॉर द लिक्विडेशन. ओके, सो कमिंग टू द स्टेजेस, लिक्विडेटर ने कस्टडी लिया, लिक्विडेटर ने ये सारा लिक्विडेशन वगैरह सब खत्म किया. ऑल योर लिक्विडेशन प्रोसेस एंड वाइंडिंग अप प्रोसेस इज ओवर. देन liquidator will prepare a statement which is called as liquidator's final statement of account. ये क्या होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो स्टेटमेंट बनाया था वो तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स था. वहाँ पे कैसे होता है कि द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एस्टिमेट्स, ओके वी एस्टिमेट दैट आवर प्लांट एंड मशीनरी आर वर्थ ऑफ 50 lakhs, वी एस्टिमेट आवर लैंड इज ऑफ वर्थ ऑफ 2 crores, वी एस्टिमेट आवर स्टॉक इज वर्थ ऑफ दिस. सो वो एस्टिमेटेड होता है. बट व्हेन यू गो टू सेल ऑफ योर असेट्स, it is quite possible कि you get the value which can be more than your book value, or it can be less than the book value, or it can be different from the estimation given by the board of directors. तो लिक्विडेटर एक फाइनल स्टेटमेंट बनाता है. वो फाइनल स्टेटमेंट बेसिकली ऐसे होता है कि लिक्विडेटर को कितना रिसीट्स आया एंड आउट ऑफ विच लिक्विडेटर ने कहाँ कहाँ किसको किसको पेमेंट किया. सो वो भी अपना सेकेंड पार्ट आने वाला है, जहाँ पे हम लोग ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भी बनाने वाला है. इट इज़ नॉट लाइक योर लेजर अकाउंट, बट इट इज़ बेसिकली वॉट द लिक्विडेटर हैज़ डन. अभी लिक्विडेटर ने ये लिक्विडेशन किया तो उसका कुछ तो, जैसे बोलते हैं ना, हिसाब तो रखना पड़ेगा कि क्या किया, कहाँ पे पैसा आया, कहाँ पे पैसा गया. सो बहुत सारी चीज़ों का एक समराइज फॉर्मेट बोल दो, दैट वुड बी लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट. तो वो लिक्विडेटर बनाएगा, कोर्ट को सबमिट करेगा, एंड आफ्टर ऑल दिस कोर्ट विल ऑर्डर फॉर डिसोल्यूशन. तो जैसे मैंने बोला था ना, वाइंडिंग अप इज द स्टार्टिंग प्रोसेस. वहाँ पे आप असेट्स बेचते हो, पे ऑफ योर लायबिलिटीज, पे ऑफ योर क्रेडिटर्स, कॉन्ट्रीब्यूटरीज, एंड देन आफ्टर एवरीथिंग इज डन, व्हेन द फाइनली आपका वाइंड अप हो गया, तभी जब भी कोर्ट का ऑर्डर आता है, व्हेन योर लीगल एग्जिस्टेंस इज ओवर, एंड दैट टाइम इट इज कॉल्ड एज डिसोल्यूशन. सो लास्ट में कोर्ट ऑर्डर कर देता है कि ओके नाउ दिस कंपनी इज डिसॉल्व्ड, इट इज नो मोर इन लीगल एग्जिस्टेंस, अभी वो कंपनी का नाम नहीं रहेगा. सो दिस इज द एंटायर स्टेप्स. जनरली आपको स्टेप्स वगैरह नहीं पूछते, बट दे कैन आस्क यू थियोरी बेस्ड ऑन दिस, और एटलीस्ट आपके नॉलेज के लिए होना चाहिए कि ओके हो क्या रहा है. बिकॉज व्हेन वी आर डूइंग द सम्स,
कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओ या स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाओ लिक्विडेटर का, सो यू मस्ट नो कि ये क्यों बना रहा है, क्या है। तो एक क्विकली अगर रिवाइज करेंगे तो कैसे होगा स्टेप्स, तो स्टेप्स बेसिकली लिक्विडेशन के लिए कुछ ऐसे चलेंगे। फर्स्ट, कोर्ट में पिटीशन फाइल किया जाता है, देन द कोर्ट विल अपॉइंट अ लिक्विडेटर फॉर दिस पर्पस। लिक्विडेटर अपॉइंट करने के बाद बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड सबमिट्स टू लिक्विडेटर। Liquidator takes the custody of all the properties of the company, of the business. Then liquidator discharges all the winding up process and he does everything. Then liquidator prepares a liquidator's final statement of account and at last court orders for dissolution. This is the basic steps. इसमें बहुत सारी legal conditions होते हैं, but that we are not considering in our accounts part. But these are the basic steps. Okay. So अभी आपको sums कैसे आएंगे? So we will have three varieties of sum. First is the statement of affairs, second is liquidator's final statement of account, and third there is one more concept is list B contributories, but वो अभी नहीं सिखा रहे हो, जब भी concept आएगा तभी तभी साथ में करते जाएंगे। Okay, so ये आपका basic जैसे summary हो गया कि okay what is liquidation, and now we'll start with the statement of affairs. First part हम लोग statement of affairs करेंगे, but you can just note down this points. Starting with the first part of our sums, that is your statement of affairs. अभी ये statement of affairs का will do the format in the next part, but पहले उसके लिए you must know this all the list. There are total 8 list. 8 list में list A B C D E F G H, तो वो तो आपको आता ही है, but A का मतलब list A is for the assets not specifically pledged. Now pledged का मतलब क्या होता है? If you have given any if you have taken any loan और if you have done any borrowings, जिसके सामने हम लोग कभी कभी अपने assets को as a security देते हैं, जैसे for example if I have taken bank OD against which my plant and machinery is given as a security, so bank OD is against the security of the plant and machinery, then that would be called as the asset is pledged for the bank OD. So list A क्या बोलता है? Asset not specifically pledged, मतलब जिसके against कोई भी फिक्स चार्ज नहीं है, दैट मीन्स नो फिक्स चार्ज अगेंस्ट दोस असेट्स। कोई पर्टिकुलर कोई फिक्स चार्ज नहीं है, मतलब उसके ऊपर कोई पर्टिकुलर फिक्स सिक्योरिटी नहीं है। लिस्ट बी इज फॉर असेट स्पेसिफिकली प्लेज्ड, दैट विल कवर अवर प्लांट एंड मशीनरी, जो अभी एग्जाम्पल दिया। इफ आई हैव टेकन बैंक ऑडी अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, देन प्लांट एंड मशीनरी विल कम ओवर हियर ऑन विच द असेट स्पेसिफिकली प्लेज्ड। So ये दो पार्ट हो गए assets के। So assets is basically classified into two parts, specifically pledged and not specifically pledged. But A is not specifically pledged, list B is specifically pledged. List C goes for preferential creditors. अभी वो preferential creditors क्या है वो हम लोग समझेंगे, but list C is preferential creditors. List D is debenture holders having the floating charge, secured by the floating charge. Now what do you mean by this floating charge? Floating charge means it is a charge on overall all the assets, not a specific asset. इसीलिए फिक्स चार्ज अलग होता है, फ्लोटिंग अलग होता है। फिक्स चार्ज कैसे होता है? एक पर्टिकुलर असेट है, उसके अगेंस्ट मेरा चार्ज है। अगर वो असेट से मेरे ड्यूज रिकवर नहीं हुए,
then I will become unsecured. So that is called fixed charge. But floating charge is float over, matlab it is charged on overall all the assets, that is called as floating charge. If nothing is specified in the question, we always assume debentures are secured by floating charge. अगर debentures unsecured है तो वो लोग आपको बताएंगे क्वेश्चन में. If nothing specified, you always assume debenture secured by floating charge. Next, list E is unsecured creditors. Now this creditors is rest of all the creditors जिसके लिए कोई security नहीं है, that is your unsecured. List F goes for the preference shareholders. List G is equity shareholders. And last list H is deficiency or surplus account. हम लोग ये भी बनाएंगे with statement of affairs. Guys ये सारे list क्या है, कैसे लिखना है, वो हम लोग करेंगे फॉर्मेट में, बट यू मस्ट रिमेंबर दिस लिस्ट. तो एक बार फटाफट देख लेंगे. लिस्ट ए इज असेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड. लिस्ट बी इज असेट स्पेसिफिकली प्लेज्ड. तो ये हो गए दो असेट्स के. फिर सी से चालू होता है अपना ये लायबिलिटी पार्ट. तो सी इज फॉर क्रेडिटर्स, बट कौन सा? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स. डी इज फॉर डिबेंचर होल्डर्स सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज. ई इज अनसिक्योर क्रेडिटर्स. सो आपके आउटसाइडर्स लायबिलिटी हो गए. अभी बातें हैं कंट्रीब्यूटरीज मतलब शेयर होल्डर्स पे. तो पहले आएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, लेट इज लिस्ट एफ. लिस्ट जी इज इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड लास्ट लिस्ट एच इज डेफिशिएंसी और सरप्लस अकाउंट. ये हो गया आपका लिस्ट. अभी इसमें यू नो दिस असेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड या प्लेज्ड वाला तो हो गया. डिबेंचर होल्डर्स पता है, अनसिक्योर्ड जिसके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है जैसे बिल्स पेबल हो या क्रेडिटर्स हो तो वो तो पता है. Preferential shareholders and equity shareholders will come and deficiency or surplus account. Now what is this preferential creditors? Guys basically preferential guys preferential shareholders क्या होता है? The shareholders gets a preference over the equity shareholders. Similarly preferential creditors means they get preference over the other unsecured creditors or over the other liabilities. So that is called as preferential creditors. अभी ये preferential creditors यहाँ पे आपको मैंने चार्ट बना के दिया है. ये हो गया आपका. देयर आर टोटल 7 टाइप्स ऑफ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स. अब ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में एक बेसिक लेते हैं. इट इज मेनली आउट ऑफ द 7, 5 इज रिलेटेड टू एम्प्लॉयज. तो ये 5 जो एम्प्लॉयज से रिलेटेड है. क्यों एम्प्लॉयज को प्रेफरेंस दिया जा रहा है? कैसे हो जाता है कि व्हेन यू रियलाइज द कैश फ्रॉम योर असेट्स यू स्टार्ट मेकिंग द पेमेंट. सो फर्स्ट हम लोग ने कैसे बोला कि फर्स्ट यू विल गिव टू द आउटसाइडर्स लायबिलिटी, then if any surplus then you give to the shareholders. okay, जब ये आउटसाइडर्स को देते हो तो 7 ऐसे लोग हैं या 7 ऐसे क्राइटेरियाज है जो जिसको आपको पहले पेमेंट करना है. पहले बिफोर डिबेंचर होल्डर्स, पहले बिफोर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स. अगर कोई फिक्स चार्ज के सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है या सिक्योर्ड लोन होल्डर्स है तो वो स्पेसिफिकली प्लेज्ड असेट्स के सामने उनका सेट ऑफ हो जाता है. बट जब भी आप रेस्ट ऑफ द बात करते हो, रेस्ट ऑफ द लायबिलिटीज़ की या रेस्ट ऑफ द क्रेडिटर्स की, तो प्रेफरेंशियल ऑलवेज गेट अ प्रेफरेंस ओवर द अदर डिबेंचर होल्डर्स एंड अदर क्रेडिटर्स. तो ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है क्या? इफ़ यू सी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स यहाँ पे मैंने 7 पॉइंट लिखे हैं. विल डिस्कस इन डिटेल्स होते हैं, पर एक बार अगर क्विक रिव्यू करते हैं तो इट इज़ गवर्नमेंट टैक्सेस, सैलरीज एंड वेजेस, हॉलीडे रेम्यूनरेशन, कंट्रीब्यूशन अंडर ESI एक्ट, compensation to the employees, PF pension for gratuity fund का payment and expenses of investigation. So अगर ये overall देखते हैं तो यहाँ पे preference जाता है employees को and government को. तो ये preference क्यों गया? कैसे हो जाता है? पहले ही मैंने बोला कि अगर liquidation होता है कंपनी का तो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है उनके एम्प्लॉयज़ को. सो कंपनी कैन नॉट डू लाइक कि वो अपने ट्रेड क्रेडिटर्स को पहले पेमेंट कर दे फिर एम्प्लॉयज़ को देखा जाएगा उनको सैलरी मिला नहीं मिला क्या बात है. दैट इज़ नॉट अलाउड बिकॉज एम्प्लॉयज़ आर द पर्सन हु वाज देयर विथ यू इन योर बिजनेस. दे वर स्टैंडिंग बिसाइड्स यू. अगर आप लॉस मेकिंग हो तो भी वो लोग थे. शायद उनका सैलरी 2 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का बाकी है, फिर भी वो लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे. सो उनको सबसे पहला पेमेंट जाना चाहिए. एंड विद दैट गवर्नमेंट टैक्सेस, गवर्नमेंट तो हमेशा आ ही जाएगा क्योंकि उनके टैक्सेस बाकी है तो उनको भी पेमेंट करना पड़ेगा. सो बिफोर पेइंग टू द आउटसाइडर्स टू द अनसिक्योर क्रेडिटर्स पहले करो प्रेफरेंशियल का पेमेंट. बट गाइज सबके लिए कुछ ना कुछ कंडीशंस हैं. सो एक पॉइंट का आई विल रीड द कंडीशंस एंड देन विल डिस्कस के क्या है. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट गवर्नमेंट टैक्सेस, इट इज गिवन सच एज all revenues, taxes, cess and rates due from the company to the central government
or state government or to a local authority at the relevant date and having become due and payable within 12 months immediately before that date। इसका मतलब क्या हो गया कि जो टैक्सेस वगैरह बाकी है स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी को 12 मंथ्स प्रीसीडिंग द रेलेवेंट डेट, यहाँ पे रेलेवेंट डेट होता है डेट ऑफ वाइंडिंग अप, जो वाइंडिंग अप का डेट आया है या कोर्ट का ऑर्डर आया है उसके 12 मंथ्स पहले जितने भी आपके गवर्नमेंट टैक्सेस, ड्यूज, सेस, रेट सब बाकी है वो सारे आपने पे करने हैं। सो दैट इज योर फर्स्ट गवर्नमेंट टैक्सेस, मतलब आई वुड से पेएबल within 12 months preceding the relevant date, I would say date of winding up, मतलब उनके टैक्सेस वगैरह पे कर दो, दैट इज योर फर्स्ट सिचुएशन, मतलब वो प्रेफरेंशियल पेमेंट हो गए। सेकेंड पॉइंट पढ़ो क्या है, इट इज सैलरीज एंड वेजेस, ऑल वेजेस एंड सैलरीज ऑफ एन एम्प्लॉय due for a period not exceeding 4 months within the 12 months immediately before the relevant date, subject to the condition that amount payable under this clause to any workman should not exceed such amount as may be notified, and right now that amount notified is 20,000 per claimant or I would say per person। So salaries wages में भी कैसे हो गया, it should be for any 4 months within preceding 12 months, जो रेलेवेंट डेट है या डेट ऑफ वाइंडिंग अप है या डेट ऑफ लिक्विडेशन है उसके 12 मंथ्स पहले में कोई भी 4 महीने का सैलरी, सो ओनली इट इज फॉर 4 मंथ्स नॉट मोर देन 4 मंथ्स, कोई भी 4 महीने का सैलरी दैट वुड बी अ प्रेफरेंशियल पेमेंट, बट इन दैट maximum would be rupees 20,000 per person। मैक्सिमम एक पर्सन को या एक क्लेमेंट को आप कितना दे सकते हो, 20,000। चलो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर टोटल आउटस्टैंडिंग सैलरी है 1,20,000, समझ लो टोटल आउटस्टैंडिंग सैलरी है 1,20,000, तो क्या ये 1,20,000 प्रेफरेंशियल पेमेंट में जाएगा? नहीं, इसमें से सिर्फ 20,000, अभी ये आउटस्टैंडिंग सैलरी मैं सिर्फ एक पर्सन का ले रही हूँ, एक एम्प्लॉय का, समझ लो एक एम्प्लॉय का 1,20,000 का आउटस्टैंडिंग सैलरी था। ओके, सो एक एम्प्लॉय को मैक्सिमम आप कितना दे सकते हो, 20,000, एंड बैलेंस 1 लाख का क्या होगा, क्या आप वो नहीं दोगे? यू विल नॉट पे टू दैट एम्प्लॉय, नो, यू हैव टू पे, बट दिस वुड बी अ प्रेफरेंशियल पेमेंट या प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, दिस वुड बी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ऐसा नहीं है कि बाकी का 1 लाख आप पे नहीं करोगे, यू विल पे द बैलेंस ऑफ द 1 लाख, बट वो जाएगा अनसिक्योर क्रेडिटर्स में। सो प्रेफरेंशियल पेमेंट का लिस्ट कौन सा था, लिस्ट सी में, जबकि अनसिक्योर क्रेडिटर्स मतलब बाकी का जाएगा लिस्ट ई में जहाँ पे अनसिक्योर क्रेडिटर्स है। ये समझ में आया? और एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय है जिसका 6 मंथ्स का सैलरी आउटस्टैंडिंग है एंड हिज सैलरी इज 2,000 पर मंथ। एक एम्प्लॉय है जिसका 2,000 का पर मंथ का सैलरी है और इसका 6 मंथ्स का सैलरी आउटस्टैंडिंग है, मतलब कितना हो जाएगा 6 × 2,000, सो हिज सैलरी आउटस्टैंडिंग इज ₹12,000। तो ये पूरा 12,000 प्रेफरेंशियल पेमेंट बिकॉज इट इज विद इन द 20,000 का लिमिट नहीं। गाइस पहला कंडीशन क्या था, इट शुड बी ओनली फॉर 4 months, नॉट मोर देन 4 months। मैक्सिमम 20,000 बराबर है, बट सैलरी आपको पे करना है सिर्फ 4 महीने का एज अ प्रेफरेंशियल, बाकी का पे नहीं करोगे ऐसा नहीं है, बाकी का जाएगा एज अनसिक्योर्ड। सो यहाँ पे भी फॉर 4 months दैट इज फॉर 2,000 दैट इज 8,000
वुड बी प्रेफरेंशियल, एंड बाकी का 2 महीने का जो बाकी है दैट कम्स टू 4,000, दैट वुड बी unsecured creditor. So this will again go in list C and this will again go in list E. Guys, ये समझ में आया? यहाँ पे मैंने months नहीं डाला था, assuming this is for 4 months only, for या और I would say ये 3 months का outstanding है, तो अगर 3 महीने का outstanding है तो it is within the 4 months. एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया. सेकेंड क्राइटेरिया क्या था कि मैक्सिमम 1% को आपको 20,000 एज प्रेफरेंशियल देना है, बाकी देना है बट एज अनसिक्योर. तो 120 जो 3 महीने का बाकी था, तो उसमें से प्रेफरेंशियल सिर्फ कितना हो गया 20, रिमेनिंग 1 लाख गोज एज अनसिक्योर. सिमिलरली यहाँ पे 6 महीने का सैलरी बाकी था, दैट वाज विद इन 20,000 का लिमिट, बट 6 मंथ्स इज मोर देन द 4 मंथ्स, तो सिर्फ 4 मंथ्स प्रेफरेंशियल में जाएगा और बाकी का 2 मंथ्स अनसिक्योर में जाएगा. गाइज ये समझ में आया? सो यू हैव टू सी बोथ द कंडीशन. ये और कंडीशन नहीं है गाइज, ये एंड कंडीशन है. एंड मतलब ये भी सेटिस्फाई करना है एंड ये भी सेटिस्फाई करना है. ये समझ में आया? 4 मंथ्स एंड मैक्सिमम 20,000 पर पर्सन. नेक्स्ट क्या है? हॉलीडे रेम्यूनरेशन. तो उसके लिए देखो क्या दिया हुआ है, ऑल अक्रूड हॉलीडे रेम्यूनरेशन दैट इज लीव सैलरी बिकमिंग पेएबल टू एनी एम्प्लॉय और इन केस ऑफ हिज डेथ टू एनी अदर पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम. यहाँ इसका मतलब कैसे हो गया? हॉलीडे रेम्यूनरेशन इज एज गुड एज गाइज लीव एनकैशमेंट. लीव एनकैशमेंट जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अगर आपका लीव एनकैशमेंट सैलरी को बाकी है, सैलरी का लीव एनकैशमेंट. नाउ इन दिस देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट. यहाँ पे आपको कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं दिया है, जितना है पूरा पे करना है. इवन इफ इट इज अज्यूमिंग 5 lakhs, you will have to pay 5 lakhs as preferential payment. Guys, जब भी I would say कि you have to pay everything. आपका जितना भी outstanding liability है, जब तक आपके पास पैसा है, you have to make the payment to your liabilities. But preferential की बात क्या होती है कि बाकी लोगों को दो, उसके पहले इनको दो. तो सैलरी में क्या हो गया कि बाकी लोगों को दो, उनके पहले 4 महीने का सैलरी दो 20,000 तक का, बाकी लोगों को दो, उसके पहले लीव एनकैशमेंट का जितना भी पैसा बनता है पहले वो पेमेंट कर दो, फिर बाकी लोगों को दो. सो दैट इज योर नेक्स्ट, दैट वाज दिस हॉलीडे रेम्यूनरेशन. नेक्स्ट पॉइंट इज योर कंट्रीब्यूशन. तो कंट्रीब्यूशन अंडर ESI एक्ट, unless the company is being wound up voluntarily merely for the purpose of reconstruction or amalgamation, all amount due in respect of contribution payable during the period of 12 months immediately before the relevant day by the company as an employer of a person under the Employee State Insurance Act 1948 or any other law for the time being in force. मतलब देखो कैसे होता है कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है या एनी अदर एक्ट है फॉर द टाइम बिंग, जिसमें एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन जाता है, अगर वो बाकी है तो वो भी आपको पे करना है. सो दैट इज दिस कंट्रीब्यूशन अंडर ESI एक्ट. अगेन यहाँ पे 12 मंथ्स का लिमिट दिया हुआ है. सो विद इन प्रिसीडिंग 12 मंथ्स, now I am again not writing preceding, it is implied preceding 12 months, अगर आपका contribution बाकी है by the employer for this purpose तो वो भी आ जाएगा. Next, compensation under workmen's compensation fund in respect of death or disablement. अब इसका मतलब क्या हो गया? अगर कंपनी का कोई compensation देना बाकी है as for death or disablement under workmen compensation act, तो वो भी आपका preferential payment हो गया. So read for that. Compensation payable under Workmen Compensation Act 1923 in respect of death or disablement of any employee of the company, then that is to be considered as preferential payment. Okay, so ये आपका compensation भी आ गया जहाँ पे आपको compensation pay करना है. So guys, these are the, अभी देखो ये employee का अब तक 4 तो हो गया, salaries and wages, holiday remuneration, contribution under ESI Act, compensation under workman compensation, and last for the employee is PF, pension fund and gratuity fund. तो उसके लिए क्या दिया है? all sums due to any employee from the provident fund, pension fund and gratuity fund or any other fund for the welfare of the employees maintained by the company. So अगर कंपनी ने PF या पेंशन फंड या ग्रेचुटी फंड के पैसे अगर कंपनी के पास पड़े हैं तो वो पैसे भी पहले पे करने हैं कंपनी को. मतलब इफ़ यू सी एम्प्लॉयज़ के लिए टोटल 5 प्रेफरेंशियल पेमेंट्स हैं.
नाउ ये कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पीएफ में अलग है। कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है कि अगर एम्प्लॉयर ने उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं किया तो एम्प्लॉयर को पहले वो कॉन्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा अंडर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। ये पीएफ पेंशन फंड ग्रेच्युटी फंड क्या है कि अगर एम्प्लॉय का जैसे पीएफ कटता है और एम्प्लॉय के पास वो एम्प्लॉय का पीएफ का या ग्रेच्युटी फंड का पैसा पड़ा है तो पहले वो पेमेंट करना है एज अ प्रेफरेंशियल पेमेंट। ओके, इसमें भी कोई लिमिट नहीं है कि कितना आपको पे करना है, इस लिमिट सैलरी पे था, बाकी सब पे कोई अमाउंट लिमिट नहीं है, तो जितना होगा वो पूरा आपको एम्प्लॉय को पे ऑफ कर देना है, मतलब उनको रिटर्न कर देना है उनका ग्रेच्युटी का पैसा या जो भी रहा। सो दैट इज ऑल्सो प्रेफरेंशियल पेमेंट। ये 5 ये हो गया। एक था आपका गवर्नमेंट टैक्सेस एंड लास्ट इज एक्सपेंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। द एक्सपेंसेस ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन held in pursuance of section 213 and 216 in so far as they are payable by the company। So ये जो भी आपका वाइंडिंग अप हो रहा है या लिक्विडेशन हो रहा है तो लिक्विडेशन करने के लिए सारे इन्वेस्टिगेशन वगैरह लगते हैं। अगर आपने फ्रॉड किया है कंपनी ने तो उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी इन्वेस्टिगेशन का खर्चा होता है। So if they are payable under section 213, 216, we are not going into the sections. So if it is payable by the company, that is also be considered as preferential payments. Okay, so these are your 7 preferential payment, guys. You have to remember this. कौन से क्योंकि जब भी आप पे ऑफ करना चालू करोगे पहले प्रेफरेंशियल का पेमेंट करोगे फिर बाकी लोगों को पे करोगे। सो सबसे पहले असेट्स का पैसा इनको जाएगा। सो फर्स्ट इज गवर्नमेंट टैक्सेस, सेकेंड सैलरीज एंड वेजेस पर कंडीशन क्या है 4 मंथ्स का मैक्सिमम, एनी 4 मंथ्स विद इन प्रीसीडिंग 12 मंथ्स एंड मैक्सिमम 20,000 per claimant। Next, holiday remuneration, that is leave encashment. Next, contribution by the company as an employer under ESI Act. Next, compensation under workman compensation fund को अगर कोई डेथ या डिसेबलमेंट में आपको compensation देना है तो। Next is your PF pension fund और gratuity fund का पैसा अगर कंपनी के पास एज एन एम्प्लॉयर पड़ा है तो वो पे करना है। एंड लास्ट इज योर एक्सपेंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो ये हो गया आपका प्रेफरेंशियल पेमेंट। नाउ इन नेक्स्ट ये हो गया आपका बेसिक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का पार्ट जहाँ पे हम लोग ने लिस्ट किया प्रेफरेंशियल पेमेंट क्या है। नाउ विल डायरेक्टली वो गो फॉर द फॉर्मेट एंड उसका सम्स करेंगे। तो पहले ये लिख लो